اور یوسف رضا گیلانی بھی نظر آ رہے ہیں، رحمان ملک کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، نثار کھوڑوں کی جانب سے ان کا نام اناؤنس کیا گیا ہے، اور آصف علی زرداری کے لیے اس وقت راستہ جو ہے وہ ہموار کیا جا رہا ہے، وہ کلیئر کیا جا رہا ہے۔ اس وقت آصف علی زرداری ٹرک پر موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین، پیپلز پارٹی کے رہنما آصف علی زرداری جو کہ 18 مہینے کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں، اب سے کچھ دیر کے بعد اپنے جیالوں سے خطاب کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں، اور اس وقت وہ اپنے جیالوں سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ آصف علی زرداری سابق صدر جو کہ 18 مہینے کے بعد وطن واپس پہنچے ہیں، ان کے جیالے بڑی تعداد میں آج صبح سے یہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، جیالیوں کی بھی بڑی تعداد ہے اور خوب جوش و خروش ہے، اور پارٹی کے نغمے بجائے جا رہے ہیں، اور آج صبح سے یہاں پر جشن منایا جا رہا تھا۔ آصف علی زرداری اس وقت کراچی پہنچ چکے ہیں اور اپنے جیالوں سے خطاب کرنے والے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت اس وقت موجود ہے، شریک چیئرمین آصف علی زرداری اس وقت عوام کے درمیان پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت عوام کے جوش کو مزید وہ بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے استقبال کے لیے آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کے ساتھ سی ایم سندھ اور مرکزی قائدین پاکستان پیپلز پارٹی کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ انتہائی سخت انتظامات سیکیورٹی کے اس وقت دیکھنے میں آئے، اور اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جو بدمزگی ہو گئی تھی اب وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ باقاعدہ وہ مائک بھی درست کر لیا انہوں نے، اور مائک ٹیسٹنگ کے بعد اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت عوام سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی جیالیوں سے جو اپنے قائد کو ایک بار پھر اپنے درمیان 18 ماہ بعد دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ایک مورال جو ہے وہ کافی بلند ہو گیا ہے کارکنان کا، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی الیکشن کمپین کا باقاعدہ کوئی آغاز ہو گیا ہو۔ یہ اس وقت پرتپاک استقبال اپنے قائد کا باتیں کرنی ہیں انہوں نے۔ اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اپنے خطاب کے دوران کیا کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت سابق صدر آصف علی زرداری خطاب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا میں بہت سی چیزیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو بڑی مایوسی ہے پاکستان میں، مگر میں آپ سے کہنے چاہتا ہوں کہ میں مایوسی کا پروگرام نہیں لے کے آیا، میں آپ کو امید کا پروگرام دے رہا ہوں۔ پاکستان، ہمارا پاکستان الحمدللہ اللہ کے فضل سے، عوام کے فضل سے، عوام کی طاقت سے اور ہماری آرم فورسز کی طاقت سے بالکل محفوظ ہے۔ ہاں، ہمارے بارڈرز پہ ضرور ایشوز ہیں، ہمارے بارڈرز پہ مسئلے ہیں، مگر آپ سوچیں کہ ایک چھوٹے سے کشمیر میں وہاں کا سمبل، وہاں کی جدوجہد اب پاکستان کے جھنڈے پہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لے کے رہیں گے کشمیر، پاکستان بن کے رہے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہاں کا یوتھ کہہ رہا ہے، وہاں کا بچہ کہہ رہا ہے۔ آپ سوچو، ایک چھوٹے سے کشمیر میں پاکستان کا جھنڈا سمبل ہے، اتنی بڑی ان فوج کے سامنے، اتنے بڑے ہندو سامراج کے سامنے پاکستان کا سمبل، پاکستان کا جھنڈا، وہ ان کا سمبل ہے، وہ ان کے گھر پہ لگتا ہے، اس کے باوجود وہ لڑ رہے ہیں اور وہ اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور کبھی بھی جو قوم جب جدوجہد کرتی ہے تو وہ ہار نہیں سکتی، اور پاکستان بھی ایسی قوم ہے، پاکستان کی عوام بھی ایسی قوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے دونوں بارڈروں پہ ان شرپسندوں نے ہمیں تکلیف دی ہوئی ہے، اور میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں ان کو ہمیشہ انگیج رکھا ہے۔ میں نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان شرپسندوں کا ملک نہیں ہے، ہم لوگوں کو، عوام کی خدمت کو، ہمارے پاس جمہوریت ہے اور جمہوریت طول چل رہی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرسی پہ آج کون ہے اور کل کون ہوگا، انشاءاللہ
आप देखेंगे कि इन एक दिन आएगा, अवाम की ताकत दोबारा पाकिस्तान में उभरेगी और हम फिर उन अवानों में बैठेंगे और हम फिर हुकूमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये इंशाअल्लाह उनकी तकदीर है। और मेरे दोस्तों, अब दुनिया इस कैमरा में आ चुकी है, सोशल मीडिया में आ चुकी है। अब कोई आपको भुला नहीं सकता। मैं लिखे पढ़े पंजाब को भी कहता हूं कि आप बच्चे जो हैं, आप लिखे पढ़े बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रही है, क्या बता रही है, क्या हो रहा है। हर चीज सोशल मीडिया पे है। अब टेलीविजन का भी दौर खत्म हो रहा है, उसका भी असर खत्म हो रहा है। फ्यूचर जो है इन बच्चों का जो है और इनकी सोच जो है, ये आज का बच्चा जो है, ये अपने प्रोफेसर की क्लास में जब जाएगा तो इसका फोन जो है वो गूगल पे उसको ज्यादा बताता है बनिस्बत इसके कि जो उस्ताद उसको पढ़ाता है। तो आप सोचें कि जब इस किस्म की आज और कल की हमारी कौम होगी और हमारी आने वाली नस्लें होंगी तो कितने पाकिस्तान में तरक्की होगी। और हमने तरक्की की। तुझे देखा तो जाना, तेरी जरूरत को माना। तुझे देखा तो जाना, तेरी जरूरत को माना। सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी। आसिफ अली सरदारी, वेलकम सरदारी। तुझे देखा तो जाना। और अभी तो सीपैक का जो कॉन्सेप्ट है, ये आर्किटेक्ट से उनने पूछा ही नहीं है, जिसने सही करके इनको बनाया है, जिसने इनको बना के दिया, जो कॉन्सेप्ट बना के दिया, उससे नहीं पूछा है। ये सिर्फ ठेकों में लगे हुए हैं। तो इसकी भी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट उससे बहुत बड़ा है, ये सोच उससे बहुत बड़ी है। जो इनकी नजर है, इनकी नजर थोड़ी छोटी है, उसको आप रहने दें। ये आपके आने वाले बच्चों के लिए, हमारे आने वाली कौम के लिए, आपके बच्चों के लिए, बिलावल के बच्चों के लिए, ये उनकी सोच के लिए हमने काम किया है। ये सोच ऐसी है जिसमें ये पूरा कॉन्टिनेंट, इस कॉन्टिनेंट में इंशाअल्लाह एक यकजहती होगी, ये कॉन्टिनेंट में डेवलपमेंट होगी। ये एक जमाने में किताबों में हम पढ़ते हैं कि ये सबसे बहुत अमीर तांज हुआ करते थे। जब सिल्क रोड होता था, जब सिल्क रोड पे सफर होता था, तो तांज जो थे वो अमीर मुल्क थे। और अब उसके बाद जाके यूरोप बना। तो ये वक्त अब लुक ईस्ट का है, ये अब इन तानों का है, ये पाकिस्तान का है, ये चाइना का है, ये इस खित्ते का है। तो इस सोच पे चलते हुए, अपनी सोच को आगे लेके जाते हुए हम उनको एंगेज करेंगे, उनके साथ एंगेज रहेंगे। वहां हर वो चीज है जिसकी हमें जरूरत है पाकिस्तान को, और वो भी, उनकी भी हम जरूरत है। कोई कौम किसी और के लिए या कोई मुल्क किसी और के लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए करता है। ये उनकी भी जरूरत है, हमारा भी इसमें फायदा है। तो ये दोनों मिलके, हम सब मिलके, और आपकी बेहतरी के लिए, बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए, केपीके की बेहतरी के लिए, पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, सिंध की बेहतरी के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए और पंजाब के इंडस्ट्रियलिस्ट की बेहतरी के लिए ये सोच सोची गई है। ये इसलिए नहीं सोची गई कि सिर्फ रास्ते बने और रोड बने। हाँ, रोड उनका एक फैक्टर है, रोड उनका एक फैक्टर है, उसके अलावा और बहुत से इसमें फैक्टर्स हैं जो कि आस्ते आस्ते मैं आपको बताता चलूंगा जैसे हमारी जदोजहद आगे चलती रहेगी। हम उन दोस्तों को, उन भोले वाले दोस्तों को, या फिर कहें कि सियासी अदाकारों को भी ये कह देना चाहते हैं कि जब भी मैं मुल्क से बाहर गया हूं,
जब मैं प्रेसिडेंट था तब मैं मुल्क से बाहर गया तो उन्होंने कहा ये भाग गया, मैं इस दफा मुल्क से बाहर गया तो कहा ये भाग गया। तो इनको ये फतूर इनके दिमाग से जाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ आती कि हमारी तो लाशें भी यहीं दफन होंगी भाई, हमने तो गड़ी खुदा बख्श में दफा होना है। तो हम कैसे पाकिस्तान को, हम कैसे अवाम को, हम कैसे मजदूरों को, हम कैसे हारियों को हम अकेला छोड़ दें कि ये सरमाएदार, एक खानदान सरमाएदार जो हैं उन पे जुल्म भी करें, राज भी करें और सिर्फ एक हट्टी करते चलें। ये नहीं होगा। इंशाल्लाह हम इनको रोकेंगे, इंशाल्लाह अवाम की ताकत से रोकेंगे और हम जमहूरी जदोजहद करेंगे, हम पार्लियामेंट्स में जदोजहद करेंगे, हम सेनेट में जदोजहद करेंगे, हम एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, हम जमहूरियत को बढ़ाएंगे। जमहूरियत ही हमारा सबसे बड़ा इंतकाम है। हमेशा शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत के बाद भी जीए भुट्टो। सो दोस्तों, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को भी इनने इस तरह शहीद किया और बीबी साहिबा ने अमेरिकन कांग्रेस के सामने तकरीर करते हुए कहा कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत भी इनने पिंडी में की और हमने कहा कि जमहूरियत पाकिस्तान हमें खपे, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान में हमने रहना है, हम इस सफर को आगे लेके चलेंगे। और आपने देखा कि बावजूद इसके कि इनने हमें चलने नहीं दिया, उस वक्त की के ताकतों ने हमें उठने नहीं दिया, हमारी हर तरफ से मुखालफत की, उनने अपने हाथों से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई, उसके बावजूद हम लड़े और अल्लाह के फजल से, आप सबकी दुआओं से हमने हुकूमत बनाई। और 5 साल पहली दफा आपकी हुकूमत ने कामयाबी हासिल की कि हमने पूरी जमहूरियत चला के, और चाहे मियाँ साहब का मैंडेट ठीक था या गलत था एक दूसरी बात है, वो हमने उनको ट्रांसफर किया सिर्फ इसलिए कि जमहूरियत आगे बढ़े। जमहूरियत हमने पाकिस्तान में इसलिए कि उसके अलावा ऑल्टरनेटिव जो है जमहूरियत का खौफनाक और भयानक है। और हम सीरिया नहीं बनते, हम वो नहीं बनना चाहते, हम ऐसे मुल्क नहीं बनना चाहते जो फेल्ड स्टेट्स हो रही हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह कभी फेल्ड स्टेट नहीं होगा। हालांकि इनके इकोनॉमी चलाने के तरीके जो हैं वो कुछ और तरीके के हैं, तो उसमें बहुत से डिफेक्ट्स जरूर हैं, मगर इसमें जमहूरियत को हम डिरेल नहीं करने देंगे, ना होने देंगे, और जमहूरियत को हम आगे बढ़ाते चलेंगे। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में पाकिस्तान की कामयाबी है, इसी में हमारे आने वाली नस्लों की कामयाबी है। और इसी दुआ के साथ कि हम इस सफर में साथ रहेंगे, पहले मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमने पुकारा तो भुट्टो के बेटे लड़कारते हुए आए और जिए भुट्टो का नारा लेके होते आए। उनको जब शहीद भी किया गया तो उनके लब पे कलमे के बाद जिए भुट्टो का ही नाम था। तो ये सोचें कि ये अमर है, भुट्टो का फलसफा अमर है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कुर्बानी अमर है, ये उनको अमर कर चुकी है। और अमर चीज को सरदारी कुव्वत है हमारी, सरदारी कुव्वत है हमारी, सरदारी एक सब पे भारी सरदारी, एक सब पे भारी सरदारी। तुझे देखा तो जाना, तेरी जरूरत को माना, तुझे देखा
सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, वेलकम जरदारी। तुझे देखा तो जाना, तेरी जुर्रत को माना, सब करते तुझे सलाम है, एक नहीं लखवारी। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, वेलकम जरदारी। तू मर्द हुर जाबाज है, इसलिए तुझ पे नाज है, हद्दे नजर सबसे अलग ऊंची तेरी परवाज है। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, तू मर्द हुर जाबाज है, इसलिए तुझ पे नाज है, हद्दे नजर सबसे अलग ऊंची तेरी परवाज है। सर को उठा के जीती बाजी कोई न हारी। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, वेलकम जरदारी। साथियों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कराची डिवीजन की जानिब से, पीपुल्स पार्टी सूबा सिंध की जानिब से एक एक कारकुन को, एक एक जियालों को, नौजवानों को, सैनी तंजीमों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत मुबारक हो आपको, मुबारक हो, आमद मुबारक हो, पाकिस्तान मुबारक हो, सिंध मुबारक हो, शहर के लोगों आपको मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत आराम से सब्र और तामुल के साथ आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। नारे भुट्टो। बढ़ाई हमारी। आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, आसिफ अली जरदारी, वेलकम जरदारी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त जलसे से मुख्तसर उन्होंने खिताब किया। खिताब यकीनन आपने भी देखा होगा, लेकिन वहां पे इस वक्त मनाजिर क्या हैं और लोग क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उनसे किस तरह की तवक्कात वाबस्ता कर रहे थे आज के खिताब से, और उन्होंने क्या कहा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अमीन शाह हमें अपडेट करेंगे। जी अमीन, क्या कहेंगे आप? जी इमरान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुस्तक़बिल गिरावटी का आज इख्तिताम हुआ।